एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਾਂਸਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਂਸਰਾ, ਸਵਿਤਾ ਕਾਂਸਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਾਂਸਰਾ, अनिल कांसरा, कपिल कांसरा, सीमा कांसरा, सुनील थापर, नीरज कांसरा, विटी कांसरा, साहिल, समीक्षा, नमित, अक्षित ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਖਜੂਰੀ ਗੇਟ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਾਂਸਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕਾਂਸਰਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ 5 ਨਵੰਬਰ 1940 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਲਕਰਾਜ ਕਾਂਸਰਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਂਸਰਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਂਸਰਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕਾਂਸਰਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਾਂਸਰਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਖੇ ਫਰਾਕਾ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਰਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਬਟਾਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੈਤੋ ਸਰਜਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਾਂਸਰਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1968 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਿਤਾ ਕਾਂਸਰਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸੀਮਾ ਕਾਂਸਰਾ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਾਂਸਰਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਾਂਸਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਾਂਸਰਾ ਜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਗਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਾਂਸਰਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੰਮ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਾਂਸਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਾਂਸਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਾਂਸਰਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਲ, ਸਮੀक्षा, ਨਮਿਤ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਿਤ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ये अटल सत्य है, इसे कोई मिटा नहीं सकता, इसे कोई टाल नहीं सकता। तो फिर क्यों ना ऐसे समय के अंदर, ऐसे दुखद घड़ी के अंदर हम भी अपने आप को ऐसा मजबूत बना लें, अपने आप को ऐसा तैयार कर लें कि ऐसा कोई भी पल हमारे जीवन में आए तो हम उस हर एक पल का अपने जीवन में सामना कर सकें, उस पीड़ा से, उस दुख से हम उभर सकें। तो उसके लिए मनीषियों ने, ऋषियों ने ईश्वर को याद किया, जितना भी हो सका उन्होंने ईश्वर का चिंतन किया, ध्यान किया। हमारे लिए ऐसी दुखद घड़ी के अंदर ईश्वर को याद करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा ध्यान मात्र वहीं उस दुख पर ही टिका रह जाता है, उस व्यक्ति पर ही टिका रह जाता है, उस दिवंगत आत्मा को ही याद करता रहता है। लेकिन फिर भी हमारे संतों महापुरुषों की ही देन है ये सभा। इस सभा को इसीलिए ही बनाया गया कि कुछ पल बैठकर हम सभी सामूहिक रूप में ईश्वर के चरणों में प्रार्थना कर सकें, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, उसके कल्याण के लिए हम ईश्वर के साथ जुड़ सकें और साथ साथ अपने जीवन को
जो दिवंगत आत्मा हमें जाते वक्त जो संदेश देकर गई है, उस संदेश को भी हम याद कर सकें और उस संदेश को भी अपने जीवन में धारण कर सकें। तो इसीलिए इस सभा का आयोजन किया गया था हमारे संतों महापुरुषों की ओर से। तो आज हम सभी इस दुखद घड़ी में इस सभा में उपस्थित हैं, लेकिन अगर हमारी दृष्टि से देखें, संतों महापुरुषों की दृष्टि से देखें, तो हम इसे शोक सभा नहीं, हम इसे ज्ञान सभा कहते हैं। ये एक ज्ञान सभा है, एक ध्यान सभा है। क्योंकि जब ऐसा दुख इंसान के जीवन में होता है तो महापुरुष कहते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा ईश्वर के नजदीक चला जाता है, ईश्वर के पास पहुंच जाता है। बस इतनी कमी रह जाती है कि उसे याद नहीं कर पाता। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा, ये सभा हमें बहुत सारे संदेश देती है। ये सभा बहुत सारे गूढ़ रहस्य जो है उन्हें उजागर करती है, उन्हें प्रकट करती है। जिन रहस्य को इंसान जानकर समझकर अपने जीवन का भी कल्याण कर लेता है और जाने वाली उन अनगिनत आत्माओं का भी कल्याण कर लेता है। लेकिन वो क्या है मार्ग, वो कौन सा रहस्य है, उस रहस्य को आज हम सभी इस सभा में श्रवण करेंगे। और जाते जाते हमें सुदेश कांसरा जी क्या संदेश देकर गए हैं, वो अपने जीवन से हमें क्या समझा कर गए हैं, उन विचारों के ऊपर, उन कार्यों के ऊपर, उनके कर्मों के ऊपर भी हम थोड़ा विचार करेंगे। तो आइए उससे पहले हम सभी मिलकर अपने मन को जो अभी बिखरा हुआ है संसार में, संसार के दुख में, पीड़ा में, उस मन को एकाग्र करते हुए प्रभु चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, ताकि हम सभी की ही प्रार्थना, हम सभी की ही पुकार ईश्वर के चरणों तक पहुंच सके और जिसे सुनकर प्रभु उस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर सके। तो आइए हम सभी मिलकर, जिसमें हम सभी कांसरा परिवार भी, इसके अंदर सुदेश कांसरा जी की पत्नी सविता कांसरा जी, उनके पुत्र नीरज कांसरा जी, बहू बेटी कांसरा जी, उनकी बेटी सीमा थापर और दामाद सुनील थापर जी और उनके भतीजे अनिल कांसरा जी, अश्वनी कांसरा जी और उनके और अन्य जो अपने हैं, उनके पुत्र हैं, उनके बच्चे हैं, जिनके साथ और भी उनके सज्जन मित्र हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके साथ उनका बहुत स्नेह रहा है, बहुत प्रेम रहा है, जिन हम सभी के वो अपने बनकर रहे हैं। तो आइए हम सभी ही मिलकर एकाग्र चित्त ईश्वर के चरणों में ध्यान करते हुए इस प्रार्थना को करते हैं और साथ साथ हम एक सुमधुर भजन के माध्यम से उस प्रार्थना को ईश्वर के चरणों में रखते हैं। आप सभी उस प्रार्थना को भी सुनिएगा और साथ साथ अपने मन के भावों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कीजिएगा। तो आइए उन भावों को हम श्रवण करते हैं, अपने मन को एकाग्र करने के लिए उस प्रार्थना को सुनते हैं, जिसके लिए आग्रह करेंगे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक एवं संस्थापक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जो हमारे गुरुदेव हैं, और उन्हीं के ही शिष्य हमारी गुरु हैं सुश्री साध्वी रवनीत भारती जी, जिन भावों को हम सभी के समक्ष रखने जा रहे हैं। तो आइए हम सभी उनके साथ मिलकर ईश्वर के चरणों का ध्यान करते हैं और इस प्रार्थना को गुनगुनाते हैं। तो बोलिए श्री रामचंद्र महाराज जी की जय, उमापति महादेव की जय, साचे दरबार की जय। श्रीपति रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। जीवन निरर्थक जाने न पाए, हीनाति अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
ये बात सत्य है। ऐसा जीवन जीना हमारे लिए किसी काम का नहीं है जिस जीवन में रहते हम अपने जीवन के उद्देश्य लक्ष्य को न जान सके, मोक्ष धाम की प्राप्ति न कर सके। क्योंकि मोक्ष धाम की प्राप्ति के लिए संसार के साथ साथ हमें एक सद्गुरु की भी जरूरत है। गुरु के बिना हम उस मोक्ष धाम के मार्ग के बारे में नहीं जान सकते। ईश्वर को प्राप्त करना होगा, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, परमात्मा से मिलने की बारी है। यदि आज हमारे हाथ से ये जीवन निकल गया, ये जीवन चला गया, फिर दोबारा हमें ये जीवन नहीं मिलने वाला। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। ये हमारे संतों का, हमारे ऋषि मनीषियों का संदेश है। इसलिए इस जीवन के रहते रहते अपने जीवन को ईश्वर के भक्ति मार्ग पर भी जरूर चलाएं, क्योंकि उस पक्ष के बिना तो हमारा संसार में तो हम बहुत ऊंचे पद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की दरगाह में, ईश्वर की दृष्टि में हमारा कोई पद नहीं है, हमारी कोई ऊंची अवस्था नहीं है। हम वहाँ पर बहुत नीचे हैं। इसलिए वहाँ पर भी हमें एक स्थान प्राप्त करना है, और वो स्थान प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? अपने ही घट में छिपे भगवान को प्राप्त करना होगा, क्योंकि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, हमारे घट में ही विराजमान है, हमारे घट में ही रहते हैं। नहीं जानते हैं तो इसका कारण ये है कि हमारे जीवन में कोई जलाने वाला नहीं आया है, हमें कोई मिलाने वाला नहीं आया है। हमारे शास्त्रों के अंदर आता है कि एक गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, एक संत जब हमारे जीवन में आते हैं, हमारे दोनों ही पक्षों को मजबूत कर देते हैं। इंसान के पास जब जिस समय आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कहते हैं इंसान दोनों ही पक्षों से मजबूत हो जाता है। राजा जनक जो ब्रह्म ज्ञानी एक संत भी थे और साथ साथ एक राजा भी थे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने राज्य को चलाया, अपने शासन को चलाया। उनके राज्य में कोई भी किसी को कोई कमी नहीं थी, कोई दुख कोई पीड़ा नहीं थी। यदि होती भी थी तो वो राजा इतने अच्छे राजा थे, राजा जनक, कि वो हर एक दुख सुख को अपना दुख सुख मानते थे और हर एक के साथ वो जाकर उस दुख सुख में सम्मिलित हुआ करते थे। मतलब उन्हें समाज के अंदर विचरना भी आ गया, समाज के अंदर रहना भी आ गया, और साथ साथ ईश्वर के साथ, भक्ति के साथ जुड़े रहना भी आ गया। वो संसार के कार्य भी करते थे और भक्ति भी करते थे। जैसे आपने श्रीमद् भागवत कथा को सुना होगा, जिसमें एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, सुमरण भी कर और युद्ध भी कर, भजन भी कर और युद्ध भी कर। अर्जुन, तुझे दोनों ही कार्य करने हैं, इस युद्ध के अंदर युद्ध भी करना है और ईश्वर का भजन भी करना है। अर्जुन ने कहा, प्रभु वो कैसे हो पाएगा, कैसे कर पाऊंगा? ये आज हम सबकी यही दशा है कि संसार के अंदर रहते हुए, इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, हर दुख सुख से निकलते हुए हम ईश्वर की भक्ति कैसे कर सकते हैं? भक्ति करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, भक्ति का मिल जाना सबसे बड़ी बात है। भक्ति कैसे मिलेगी? उसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें जरूरत है एक संत की, सदगुरु की। गुरु ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो स्वयं उस परम उस ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जो स्वयं उस ईश्वर को जानते हैं और हमें भी ईश्वर के साथ जोड़ दें, उसके साथ हमें मिला दें, उसका हमें साक्षात्कार करवा दें हमारे ही घट के अंदर। क्योंकि गुरु की यही कसौटी है कि गुरु जब हमारे जीवन में आएंगे, हमारे मस्तक पर हाथ रख, हमारे इस तीसरे नेत्र को, शिव नेत्र को, जहाँ हम तिलक बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर हमारी तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है, जिसे दिव्य दृष्टि दशम द्वार कहा गया है। इस दशम द्वार को खोल देंगे, अपना कृपा रूपी हाथ हमारे सर पे रखकर। जैसे ही ये दशम द्वार खुलेगा, उसी समय हम अपने घट के अंदर ईश्वर के, परमात्मा के प्रकाश रूप में, ज्योति स्वरूप में भगवान के ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। और उसके साथ ही हमारे ही घट के अंदर गुरु उसी ही समय 2-4 साल महीने अभ्यास प्रयास करने के बाद नहीं, उसी समय तत्क्षण कहा गया है, उसी ही समय ईश्वर का साक्षात्कार के साथ साथ ही हम उस ब्रह्म संगीत को, ईश्वर की ध्वनि, उसकी आवाज को सुन पाएंगे, जिसे सुनने के लिए,
जैसे देखने के लिए ये आंखें कारगर नहीं है, इन आंखों के द्वारा मात्र हम संसार देख सकते हैं, ईश्वर को नहीं देख सकते। ईश्वर को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत है। ठीक इसी तरह से परमात्मा की ध्वनि को, आवाज को सुनने के लिए भी इन कानों की नहीं, भीतरी कानों की जरूरत है। और गुरु हमें अंदर ही उस ब्रह्म संगीत के साथ जोड़ देंगे, उस ब्रह्म संगीत को भी उसी समय ही हम सुन पाएंगे। इतना ही नहीं, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं हमें 4 फल प्रदान करते हैं। हनुमान चालीसा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जिसमें पहली पंक्तियां ही कह रही हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजी मन मुकुर सुधार वरुणो रघुवर विमन जसु जो दायक फल। हाँ जी, 4 फल। ऐसे गुरु के चरण रज को मस्तक पर धारण करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरे घट के अंदर उन 4 फलों को प्रदान कर दिया, प्रकट कर दिया, मुझे वो 4 फल दे दिए। 4 फल कौन सी हैं? पहला, भगवान का साक्षात्कार हो जाना प्रकाश रूप में अपने ही घट के अंदर। दूसरा, ब्रह्म संगीत, उसको सुन लेना इन कानों के बिना, भीतरी कानों के द्वारा अपने ही घट के अंदर। और तीसरा फल गुरु क्या प्रदान करते हैं? चरना अमृत, हमें हमारे घट से ही पिला देते हैं। चरना अमृत भी बाहर से नहीं मिलता, बाहर से नहीं पिया जाता। हमारे महापुरुषों ने कहा कि बाहर ही यदि हम मंदिर मस्जिद में हमें वो अमृत प्राप्त होता है, चरणामृत हम लेते हैं, वो अमृत हमें एक संकेत करता है कि ऐसा ही अमृत हमारे यहाँ इस गगन मंडल के अंदर, इसके अंदर भरा पड़ा है। और वहीं से गुरु हमें पीना सिखाते हैं कि घट के अंदर से ही उसके प्याले भर भर कर पिए जाते हैं। लेकिन सगुरा होवे भर भर पीवे निगुरा मत प्यासा, जिसके जीवन में ब्रह्मनिष्ठ गुरु आ जाते हैं वही प्याले भर कर पीता है, निगुरा मत प्यासा। जिसके जीवन में ऐसे गुरु नहीं आते वो उस अमृत से वंचित ही रह जाता है। और चौथा फल है परमात्मा का नाम, जो कि पढ़ने लिखने बोलने में नहीं आता, शब्दों में नहीं है, व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा का नाम तो हमारे जन्म से पहले ही परमात्मा ने हमारे भीतर रख दिया था। कैसा नाम है वो? हमारे संत गुरु साहिबान स्वयं कह रहे हैं, उन्होंने गुरबानी के अंदर कहा है, उन्होंने कहा मात गर्भ में उर्द तप करता, श्वास श्वास सिमरत प्रभ रहता। उन्होंने कहा कि जिस समय हम माँ के गर्भ के अंदर थे वहां पर भी परमात्मा का सुमरन कर रहे थे, भजन कर रहे थे। कैसे? क्योंकि उस समय तो हमें किसी भाषा का ज्ञान नहीं है, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, हमें पता ही नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है, कौन है, कुछ नहीं ज्ञान होता, लेकिन फिर भी परमात्मा का सुमरन कर रहे होते हैं। जीवना दो दिन का मेहमान, कब सुमिरोगे राम, अब तुम कब सुमिरोगे राम, अब तुम कब सुमिरोगे राम।
जीवना 2 दिन का मेहमान, अब तुम कब सुमरोगे राम। कबीर जी महाराज कह रही हैं कि अब भी समय है हमारे पास, कब सुमरना है फिर, जब जीवन हाथ से चला जाएगा। इसलिए उस समय रहते रहते उस ईश्वर की प्राप्ति करें, ऐसे संत सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त कर अपने जीवन का कल्याण करें। तो आइए अब यहीं पर ही इन विचारों को विराम देते हैं। तो चलते चलते हम सभी मिलकर दिवंगत आत्मा के लिए प्रभु चरणों में शांति की प्रार्थना करते हुए शांति पाठ करेंगे। उसके पश्चात माइक पंडित जी के पास चला जाएगा, भाई जी के पास चला जाएगा। वो आगे की सूचनाएं जो भी है कार्यक्रम के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आइए उससे पहले हम सभी मिलकर शांति पाठ करते हैं। आप सब भी साथ में सम्मिलित हो। आप सब भी आंखें बंद कर ईश्वर का ध्यान करते हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए ईश्वर के चरणों में दिवंगत आत्मा के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। तो यहीं पर ही साथ ही विचारों को विराम देंगे। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। भाव शांति रतवृक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। शांतिः शांतिः शांतिः। आप सभी के बीच जो जो भी आपके संबंध हैं, उन्हीं संबंधों में एक कड़ी उनके व्यवसाय की ओर से हम सबको आशीर्वाद के रूप में जो वो कार्य करते थे ब्रिक्स का, ईंट बनाने का, मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए नींव से लेके एक ऐसे घर बना के दे गए जो कि हमें हमेशा के लिए उनका आशीर्वाद रहेगा। सुश्रद्धेय खोसला जी के परिवार से उनकी दोहती समीक्षा थापड़ जी आपके समक्ष अपने विचार रखना चाह रही है। उन्होंने अपने उनके लिए जो भी भाव रखे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया वो आगे आएं और अपने भाव पूज्य सुदेश कांसरा जी के लिए आपके समक्ष रखें। इस सदमे को बर्दाश्त करना बेहद कठिन है कि मेरे प्यारे नाना जी श्री सुदेश कांसरा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। आपके सोने से कोमल हृदय ने शनिवार को धड़कना बंद कर दिया था। उन कर्मशील हाथों ने काम करना बंद कर दिया था। ईश्वर ने इस झूठी नाशवान दुनिया से खींचकर आपको अपने सच्चे घर में स्थान दिया है। अगर सारे ब्रह्मांड में भी खोजें तो आप जैसी प्यारी व सबकी परवाह करने वाली अच्छी और सच्ची रूह नहीं मिलेगी। कहते हैं माता पिता जैसा कोई नहीं, उनका देना कोई नहीं दे सकता। मेरे प्यारे नाना जी, आप हमारे परम आदरणीय डैडी थे। डैडी, आपकी वो मीठी सी खास मुस्कान, आपका वो ऑरा, आपके साथ बीता हुआ सुरक्षित बचपन से लेकर अंत काल तक बीता हुआ वक्त मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपकी वो निस्वार्थ प्रवृत्ति और निष्काम भावना से किए गए सामाजिक सेवा कार्य और आपका सरल व सौम्य स्वभाव, देवतुल्यता सदा याद रखेंगे। आपके आलिंगन की गर्माहट
मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। आप जैसा निरपेक्ष प्रेम करने वाला व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। कहते हैं बिना शर्त का इश्क आत्मा की तरह शुद्ध होता है। आपके द्वारा आपका दिया गया स्नेह और दिल से किया गया सबका परोपकार हमेशा याद रहेगा। आप जी ईमानदार, दृढ़ विचार, साफ व सच्चा दिल रखने वाले नेक इंसान थे। बाबा जी, मैं साहिल, नमित और अक्षित आपके आभारी हैं और बेहद भाग्यशाली हैं कि आपने हमें इतने अच्छे डैडी दिए। आपने अपने बच्चों को हमेशा प्यार से रखा। डैडी, आप जैसे अच्छे व संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति को खोना एक बड़ा नुकसान है। आप जी सबके शुभचिंतक रहे और आपने सबका सम्मान व आशीर्वाद दिया। आपके बच्चे आपके द्वारा दिए गए संस्कारों को हमेशा कायम रखेंगे। आपकी कमी हमेशा महसूस होगी। आप हमेशा के लिए हमारे रोल मॉडल रहेंगे। आपके सादा जीवन व उच्च विचार रखने की प्रवृत्ति ने मेरे जीवन में गहरी छाप छोड़ी है। आपके द्वारा बोया हुआ प्यार हमेशा हमारे परिवार में फलेगा। बाबा जी से यही प्रार्थना है कि वो आपको अपने चरणों में स्थान दे। परिवार के कुछ सदस्य जो कनाडा में बैठे हैं, लाइव है, मैं देख रहा था कि सभी की आंखें नम हैं और वो अपने दादाजी को कितने श्रद्धांजलि और कितना मिस कर रहे हैं, ये सब हम लोग जानते हैं, देखते हैं। परिवार के सदस्यों में उनके सुपुत्र जो कि हमेशा सामाजिक सेवा में बहुत अग्रणी हैं, कार्यरत रहते हैं, श्री नीरज कांसरा जी, श्री अश्विनी कांसरा जी और श्री अनिल कांसरा जी। ऐसा परिवार है जो कि समस्त शहर की ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब भर की चलने वाली बहुत सारी गतिविधियों में अग्रणी है। और यही हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि श्री सुदेश कांसरा जी द्वारा इन सबको, हम सबको दिए गए संस्कार आज हम सब उनकी आशीर्वाद से छत्र छाया में सामाजिक कार्यों में कर रहे हैं। हमारे पास बहुत से शोक संदेश आए हैं। मैं क्षमा याचक हूँ अगर किसी का नाम ना ले सके। सबसे पहले बेरिंग कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी की ओर से परिवार को शोक संदेश प्राप्त हुआ है। आर्य गर्ल्स मैनेजमेंट की ओर से एक शोक संदेश आया है। आर बाबा कॉलेज मैनेजमेंट की ओर से शोक संदेश एवं मैडम आए हैं। आर.डी. खोसला डीएवी मॉडल स्कूल से सारे मैनेजमेंट के सदस्य, उनकी ओर से भी शोक संदेश आया है। द मिलेनियम स्कूल खोसला परिवार के मैनेजमेंट की ओर से भी हमें शोक संदेश प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ नीरज जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, सब ने अपने अपने संदेश हमें भेजे हैं, जिसमें से लॉयंस क्लब बटाला सेवा की ओर से शोक संदेश प्राप्त हुआ है। नीव वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड, जो कि बड़ी अच्छी सोसाइटी है, पंजाब में एनजीओ का काम कर रही है, नीरज जी उनके साथ भी जुड़े हैं, उनसे भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। लॉयंस क्लब की दूसरी संस्थाएं, लॉयंस क्लब बटाला प्रिंस की ओर से और लॉयंस क्लब बटाला स्माइल की ओर से भी हमें संदेश प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ बटाला की बहुत ही एक अच्छी संस्था जो कि सामाजिक कार्यों में, ऐसे कार्यों में अपना अग्रणी योगदान देती है, सहारा क्लब की ओर से भी शोक संदेश आया है। श्री जोगिंदर अंगुराला जी, जो कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन पंजाब है, उनकी ओर से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। ये सारी वो संस्थाएं हैं जिनमें कांसरा जी द्वारा दिए गए आशीर्वाद के रूप में
आज हम सब उनके सुपुत्र मिलकर सेवा के कार्य कर रहे हैं। सो आप सभी का धन्यवाद है इस शोक सभा में आने के लिए और संदेश देने के लिए। अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा डॉक्टर अश्विनी कांसरा जी से कि कृपया वो परिवार की ओर से अब सबका आए हुए महानुभावों का धन्यवाद करें। उसके साथ साथ कुछ संस्थाओं को परिवार की ओर से कुछ दान राशि के रूप में उनकी याद में दिए जानी है, कृपया वो लेके जाएं। सबसे पहले सती लक्ष्मी देवी गौशाला बटाला के लिए, श्री हरि मंदिर अर्बन स्टेट जहाँ पे परिवार की ओर से हमेशा के लिए योगदान रहता है उनके लिए, सुभाष पार्क वेलफेयर जो चल रहा है उनके लिए, श्री राधा स्वामी सत्संग घर जहाँ पे श्री नीरज जी बहुत ही आगे बढ़कर सेवा के कार्य करते हैं, बाबा जी का उन पे विशेष आशीर्वाद है और अपेक्षा है कि इसी तरह वो श्री सुदेश जी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर चलते हुए सेवा के ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। सहारा क्लब के लिए कुछ दान राशि परिवार की ओर से दिए जानी है। इसके साथ साथ नीव वेलफेयर सोसाइटी के लिए भी कुछ दान राशि है, तो कृपया उनके जो भी सदस्य आए हैं यहाँ पे वो कृपया जाते समय ये दान राशि लिखें। सो कांसा जी आपको परिवार की ओर से धन्यवाद के कुछ शब्द कहना चाह रहे हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਦੇਸ਼ ਕਾਂਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕ ਵਪਾਰਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਸਿਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਬਟਾਲਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ, ਐਜ਼ ਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਯੋਗਦਾਨ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਹਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਮੈਚ ਵੇਖ ਕੇ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲਸ, ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲਸ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਪਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕੁਝ ਕਮਾਓ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਥਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਕਨੇਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ
कभी नहीं सी कहते भी तू प्रोफैसर हाँ या तू प्रिंसीपल हाँ, हमेशा आवाज़ दे के कहते पै जा मेरे कोल बैठ के गल कर। सो मापियां दियां ये गल्लां अज भी साडे अंदर सानू हमेशा जिथे मानसिक तौर पर कुछ परेशान भी कर दिया उत्थे सानू इस गल की तसल्ली भी दे दिया कि असीं अज जो भी हाँ उन्होंने बदौलत हाँ, उन्होंने देन है। परमात्मा की अरदास कर रहे हैं कि उन्होंने अपने चरण स्थान देवे और साडे परिवार को जिस तरीके नाल उन्होंने जोड़ के रखा। कोई ये नहीं कह सकता कि नीरज ते अश्विनी दो वक्रे वक्रे चाचे ताए के मुंडे हैं। लोग कहते हैं कि ये वड्डा है ये छोटा है। ये भावना किन्होंने ने दी है? वो चाचा जी की देन है जिन्हों की बदौलत असी अज एक परिवार वजों एक जगह पर रिप्रजेंट कर रहे हैं। मैं यादा ना कहते हुए आए हुए शहर के वक्त सबनों धन्यवाद करना हाँ जी। शोक कड़ी च साडे नाल शामिल होए हैं। परमात्मा तुहानूं सब नूं शांति देवे और उन्होंने उस विचड़ी हुई शांत आत्मा को भी शांति। धन्यवाद। ओम शांति।